हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 8 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ओके स्टूडेंट, और आज की हमने अपनी इस क्लास में लिया है ओनली फाइबर्स, इट्स टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, you all know that clothes which we wear are made up of fabrics। जो हम कपड़े पहनते हैं वो फैब्रिक के बने होते हैं। फैब्रिक मीन्स कपड़ा। ओके, और दिस फैब्रिक इज मेड अप ऑफ फाइबर्स, और दिस फाइबर विच वी गेट फ्रॉम मे बी नेचुरल, इट मे बी artificial source. Okay, so broadly if we categorize the fiber, we can categorize in two types. One is natural, one is synthetic fibers. Okay, as the name indicate, natural fiber are those fiber which we obtain directly from nature, or we can say from plants and animals. Okay, there are some examples like cotton, jute, wool, silk, etc. These are the examples of natural fiber. Okay, okay student, natural fiber, natural fiber or second one is synthetic student. Okay, synthetic fiber, as the name indicate, synthetic, we can also say these are artificial. Means these fibers are not found in, not which we get from nature directly. Okay, these are actually man-made. These are actually man-made fiber. Okay, these are actually man-made fiber. Okay, these chemical fiber, or you can say man-made fiber, are processed in factories through, mainly through petrochemical substances. Okay, examples are some synthetic fibers are nylon, rayon, polyester and acrylic. Okay, there are some pictures you can see student. Cotton, this is cotton, this is jute, this is wool, this is silk. These all are the examples of natural fiber. Okay, all these natural fiber we get directly from nature, or you can say plant or animal. Okay, these are the examples of artificial fiber, or you can say synthetic fiber: nylon, rayon, polyester and acrylic. One by one student, we will discuss all these synthetic fibers. Okay, सिंथेटिक फाइबर्स मीन स्टूडेंट, वी ऑलरेडी डिस्कस। सिंथेटिक फाइबर में क्या होता है स्टूडेंट? देयर इज अ चेन ऑफ मैनी स्मॉल यूनिट्स, चेन ऑफ मैनी स्मॉल यूनिट्स. ओके, दीज स्मॉल यूनिट्स आर कॉल्ड मोनोमर. Monomer. This small chain, this small unit is called monomer. Means if you see this chain, this small beads is called monomer. Okay, it's called monomer. Or this all these small unit combined together or joined together by some chemical process. Many small units join together to a large number single unit to form polymer. Okay, means monomer, all monomer are joined together and form a single polymer. And this chain is, you can say this chain is called polymer. This chain is called polymer. This chain is called polymer. All are polymers. Okay, here is the example of this, just like a pin. We stick all these paper clips. Okay, or see a chain will form. Okay, this chain is called polymer. Or this polymer, the formation of this polymer is done through a process called polymerization. It is polymerization. It is polymerization. Okay, means student, synthetic fiber actually are man-made fiber. Okay, these are
man-made fiber, or you can say made by human. Synthetic fiber made a chain of small unit joined together. This small unit is called monomer. Is monomer, monomer joined together to form a polymer. Or this polymer is formed by this process called we already discussed polymerization. Okay, student, you know there is an example of natural polymer. Natural polymer, you know, cellulose. Student, cellulose is a natural polymer. Okay, the single unit of cellulose is glucose. Okay, it is glucose, means number of glucose combined together to form cellulose, or this glucose is called monomer, and all these glucose combined together to form cellulose. Cellulose is just like a polymer, or this is a natural polymer. Student, we can find this, we can get this cellulose in nature also. Okay. Okay, student, one by one we will discuss these synthetic fiber. Okay, these are the types of synthetic fibers. Look, first synthetic fiber is rayon. Student, we already say rayon is artificial silk. It is artificial silk. Why we call it artificial? It look like silk. आप जानते हैं स्टूडेंट, सिल्क जो है, सिल्क इज अ वेरी कॉस्टली मटेरियल. एवरीबडी वांट टू वेयर सिल्क क्लॉथ, बट इट इज़ वेरी कॉस्टली. So mostly people wear rayon cloth instead of silk. Silk is a natural substance and it is very costly. Okay, rayon is a synthetic fiber made by chemical process. Okay, student, as we already discussed that synthetic fiber are manufactured from this chemical process. The raw material used to manufacture rayon is wood pulp. Actually, wood pulp is a natural substance. Student, is a natural substance. So actually rayon, the process of making rayon is not complete. This rayon fiber is not completely artificial. You can say it is semi artificial, because the wood pulp is the wood pulp which we use to make rayon cloth is made found in nature also. Okay, rayon has a property similar to silk. Student, as we already discussed, सिल्क रेन की जो प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, वो सिल्क जैसी होती हैं. इसीलिए इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं. आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं. और इस सिल्क के कंपैरिजन में इट इज़ वेरी वेरी चीपर. इट इज़ वेरी वेरी चीपर. बहुत ही चीप होता है स्टूडेंट, सस्ता होता है. इसीलिए जो लोग सिल्क अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग रेयन को पहनते हैं, रेयन के कपड़े पहनते हैं. ओके, रेयन फाइबर के कपड़े पहनते हैं. ओके स्टूडेंट, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल. आपने ड्रेस मटेरियल देखा होगा, ड्रेस मटेरियल के लिए रेयन का इस्तेमाल किया जाता है. इट इज़ मिक्सड विथ कॉटन फॉर मेकिंग बेडशीट. रेयन को कॉटन के साथ मिक्स कर दिया जाता है स्टूडेंट, जिससे बेडशीट बनती है, कर्टन बनते हैं. इट इज़ मिक्सड विद वूल. इसको वूल के साथ भी मिक्स कर दिया जाता है स्टूडेंट, जिससे हम कारपेट्स और मैट्स बनाते हैं. ये आपके सामने एग्जांपल, जैसे कारपेट, मैट, और ये आपके जो ये कर्टन्स है, ये आपके ड्रेस हैं. तो ड्रेस मटेरियल के भी, कर्टन के लिए भी, कारपेट के लिए भी और मैट के लिए भी वी कैन यूज़ रेयन. बट हम पूरा रेयन इस्तेमाल नहीं करेंगे स्टूडेंट. वी यूज़ small amount of cotton, wool in all these articles. Okay, all these things. जैसे स्टूडेंट, अगर हम रेयन से बेडशीट बनाते हैं स्टूडेंट, मीन्स रेयन प्लस कॉटन, इन दोनों से मिल करके हम क्या बनाते हैं स्टूडेंट? बेडशीट. ओके, बेडशीट बनती है. फिर देखिए स्टूडेंट, रेयन प्लस वुल, इससे क्या बनता है स्टूडेंट? इससे बनता है कारपेट. तो इसी तरीके से हम रेयन को डिफरेंट चीज़ों के साथ मिक्स करके हम अलग अलग आर्टिकल बनाते हैं स्टूडेंट. ओके, होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट वन इज नाइलॉन.
नेक्स्ट वन इज नाइलॉन स्टूडेंट. नाइलॉन इज ऑल्सो अ सिंथेटिक फाइबर. नाइलॉन भी एक सिंथेटिक फाइबर है स्टूडेंट. इट इज मेड अप ऑफ कोल, वाटर एंड एयर बाय द केमिकल प्रोसेस. कोल, वाटर एंड एयर के केमिकल प्रोसेस से नायलॉन को बनाया जाता है स्टूडेंट. ओके. इट इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक. ये बहुत ही लाइट वेट का होता है स्टूडेंट. इसका वेट बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है स्टूडेंट. बल्कि ये कहेंगे कि नायलॉन इतना स्ट्रॉन्ग होता है स्टूडेंट, एक स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्ग नायलॉन की वायर होती है स्टूडेंट. ओके. इलास्टिक होता है स्टूडेंट और लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश. और इसको वॉश करना बहुत ईजी होता है. नायलॉन के कपड़े बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि उनके वॉश करना भी उनको बहुत आसान होता है. नायलॉन थ्रेड इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील. इसकी जो थ्रेड होती है स्टूडेंट नायलॉन की, इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन स्टील. स्टील एक मेटल है स्टूडेंट. एक्चुअली स्टील इज एलॉय. स्टील के से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी वायर होती है स्टूडेंट. ओके. ये देखिए, ड्रेस मटेरियल के लिए भी और ये सब चीज़ों के लिए, देखिए सॉक्स के लिए, रोप के लिए, पैराशूट के लिए, बैग्स हो गए स्टूडेंट, इन सब के लिए ये कार सीट बेल्ट है स्टूडेंट. ब्रशेस के जो आगे के आप जिससे ब्रश करते हैं उसको देखिए, ब्रशेस देखिए स्टूडेंट, वो भी आपके नायलॉन के ही बनते हैं. कर्टन भी स्टूडेंट आपके नायलॉन के बनते हैं. इनको वॉश करना बहुत आसान है स्टूडेंट. जो नायलॉन्स के कपड़े होते हैं, जो नायलॉन की से फाइबर बनता है स्टूडेंट, उस नायलॉन फाइबर से जो फैब्रिक बनता है, इट इज़ वेरी ईजी टू वॉश इट. ओके. उसको वॉश करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है स्टूडेंट. ओके. तो अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था रेयन. जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं स्टूडेंट केमिकल प्रोसेस से, वी यूज़ वुड पल्प. वुड पल्प इज़ अ नेचुरल सोर्स. बट इन केस ऑफ नायलॉन यू सी कोल, वाटर एंड एयर, ऑल दीज थ्री थिंग्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं थ्रू केमिकल प्रोसेस नायलॉन को बनाने के लिए, दीज ऑल आर नॉट नेचुरल. दीज आर नॉट नेचुरल. दीज आर नॉट नेचुरल. सो रेयन जो नायलॉन है स्टूडेंट, इट इज़ अ फर्स्ट आर्टिफिशियल, फर्स्ट कंप्लीटली, यू कैन से फर्स्ट कंप्लीटली आर्टिफिशियल फाइबर. ओके. फर्स्ट कंप्लीटली मैन मेड फाइबर. ओके. नेक्स्ट वन इज पॉलिस्टर. देखिए स्टूडेंट, एज अ नेम इंडिकेट, पॉली, इट इज पॉली प्लस एस्टर. पॉली प्लस एस्टर, यानी कि एस्टर, बहुत सारे एस्टर ग्रुप आपस में साथ में मिल करके पॉलिस्टर बनाते हैं स्टूडेंट. ये भी बहुत ही पॉपुलर कपड़ा है स्टूडेंट, बहुत ही पॉपुलर फाइबर है. तो देखिए, पॉलिस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड एस्टर. यानी कि यहाँ जो मोनोमर यूनिट है स्टूडेंट, एक सिंगल यूनिट है स्टूडेंट, दिस सिंगल यूनिट इज कॉल्ड मोनोमर. दिस मोनोमर इज एस्टर हियर. यहाँ ये पॉलिस्टर में वो सिंगल यूनिट मोनोमर क्या है स्टूडेंट? एस्टर है. इट इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, ईजी टू वॉश एंड डज नॉट गेट रिंकल्ड. इसकी सबसे खास बात होती है स्टूडेंट, ये रिंकल्ड नहीं होती, इसमें रिंकल नहीं पड़ते. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल. जो यूनिफॉर्म्स वगैरह होती हैं स्टूडेंट, यूनिफॉर्म बनाने के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. ओके. इट इज़ मिक्सड विथ कॉटन टू गेट पॉलीकॉट. अगर इसको कॉटन के साथ मिक्स कर दिया जाए स्टूडेंट, पॉलीकॉट, तो इसे हम पॉलीकॉट कहते हैं. पॉली प्लस यानी पॉलिस्टर प्लस कॉटन. इट इज़ पॉलीकॉट मीन्स पॉलिस्टर प्लस कॉटन. इफ इट इज़ मिक्सड विद वूल, वी से पॉली वूल. पॉलिस्टर प्लस वूल. ओके. पॉली वूल. तो इसी तरीके से स्टूडेंट जो हमारा पॉलिस्टर है बहुत ही पॉपुलर है ये भी, और ये कंपैरेटिवली बहुत ही ईजी होता है इसको वॉश करना, और ये बहुत ही चीप होता है, इजीली अवेलेबल होता है, इसीलिए इसको ड्रेस मटेरियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ओके. देर आर कॉमनली टू टाइप ऑफ पॉलिस्टर्स. वन इज स्टेरिलीन एंड वन इज PET. ये समझ लीजिए स्टूडेंट, दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर पॉलिस्टर. पॉलिस्टर बहुत अलग अलग तरीके का होता है स्टूडेंट. तो यहाँ हम दो एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं, टेरिलीन एंड PET. पॉलीथाइलीन, टेराथाइलेट. ओके. तो टेरिलीन क्या है? टेरिलीन इज ए पॉलिस्टर यूज फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल.
जो टेरेरिन स्टूडेंट, उसको ड्रेस मटेरियल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूनिफॉर्म होती हैं, यूनिफॉर्म के लिए हम इसको बहुत ही पॉपुलरली इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही चीप है ये कंपैरेटिवली। और सेकेंड इज PET, इट इज अ पॉलिस्टर यूज फॉर मेकिंग बॉटल, यूटेंसिल्स, फिल्म, वायर्स एक्सेट्रा। ये जो PET है स्टूडेंट, एक तरीके का ये जो मटेरियल है उसको बॉटल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन स्टूडेंट, एक्राइलिक। ओके, ये भी एक आर्टिफिशियल ही फाइबर है स्टूडेंट। एक्राइलिक देखने में ये वूल जैसा लगता है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया जितने भी नेचुरल फाइबर हैं, ऑल नेचुरल फाइबर आर वेरी कॉस्टली एंड नॉट ईजिली अवेलेबल। कॉस्टली हैं, कॉस्टली होने के कारण सभी लोग उसको नहीं खरीद पाते। और जो एक्राइलिक है स्टूडेंट, ये काफ़ी चीप है और इजीली अवेलेबल है। आप देखेंगे जो सर्दियों में वुलन के कपड़े लोग पहनते हैं उसे वुलन क्लॉथ्स ही बोल देते हैं, बट इट इज़ मेड अप ऑफ, एक्चुअली इट इज़ मेड अप ऑफ एक्राइलिक। जो ब्लैंकेट्स हम इस्तेमाल करते हैं, अगर उस ब्लैंकेट को हम प्योर वूल से बनाएं स्टूडेंट, आप जानते हैं स्टूडेंट वूल जो है वो एक एनिमल प्रोडक्ट है जो डायरेक्ट हमें एनिमल से मिलता है ना। तो अगर उस एनिमल प्रोडक्ट से हम किसी ब्लैंकेट को, शॉल को और किसी भी स्वेटर्स इनको बनाएं तो इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली। तो एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड इट। सभी लोग मतलब हर कोई आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि ये कॉस्टली है, ठीक है। इसीलिए जो एक्राइलिक मटेरियल है स्टूडेंट, जो देखने में वूल जैसा ही लगता है और उससे आज की डेट में बहुत सारे जो हैं ये स्वेटर, शॉल एंड ब्लैंकेट सब चीज़ें बनती हैं। इट इज़ ऑल्सो अ सिंथेटिक और यू कैन से मैन मेड फाइबर। ओके, अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट, आज हमने कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में डिस्कशन किया स्टूडेंट। हमने बेसिकली जो सिंथेटिक फाइबर को इलेबोरेट होकर स्टडी करने की कोशिश करी है। ओके, उसमें सबसे पहले हमने स्टडी करा है रेयॉन, जिसको हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। नाइलॉन के बारे में स्टडी किया है, जिसको नाइलॉन को हम फर्स्ट कंप्लीट आर्टिफिशियल फाइबर बोलते हैं। और फिर हमने पॉलिस्टर के बारे में स्टडी किया है। देन फाइनली वी डिस्कस अबाउट एक्राइलिक। ओके, in this slide student you see characteristics of natural synthetic fiber, characteristics of synthetic fiber। जैसे हमने पीछे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में सब डिस्कशन किया स्टूडेंट, यहाँ देखिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा है। एक्चुअली व्हाई वी आर यूजिंग सिंथेटिक फाइबर इंस्टेड ऑफ नेचुरल फाइबर स्टूडेंट, द मेन रीजन इज दैट सिंथेटिक फाइबर आर इजीली अवेलेबल। लुक स्टूडेंट, लाइट, उनका वेट जो होता है बहुत कम होता है स्टूडेंट। स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत होते हैं। इलास्टिक, इनमें काफ़ी इलास्टिसिटी होती है। दीज आर ड्यूरेबल, बहुत समय तक चलते हैं स्टूडेंट ये। एब्जॉर्ब लेस वाटर, वाटर को कम एब्जॉर्ब करते हैं। ड्राइज फास्ट, बहुत जल्दी सूख जाते हैं स्टूडेंट। ईजी टू मेंटेन एंड लेस एक्सपेंसिव, इनको मेंटेन करना आसान है और एवरीबडी कैन अफोर्ड इट, और बहुत ही कम एक्सपेंसिव होते हैं स्टूडेंट। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स होने के कारण आज लोग नेचुरल फाइबर्स से बने हुए जो क्लॉथ्स हैं उनको कम इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। और आर्टिफिशियल क्लॉथ्स जो होते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए होते हैं स्टूडेंट, मैन मेड क्लॉथ्स होते हैं, बल्कि जो मैं कहूँगा जो केमिकल प्रोसेस से बनते हैं, जो पेट्रोकेमिकल से बनते हैं, उन क्लॉथ्स को लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके पीछे यही सारे उसके पीछे रीज़न है स्टूडेंट। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज एडवांटेज देयर आर सम डिसएडवांटेज ऑल्सो। इन सब एडवांटेजेस के अलावा, ये जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स हैं स्टूडेंट, इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं स्टूडेंट? अगर ये बहुत ही चीप है, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है स्टूडेंट, ये बहुत जल्दी फायर कैच कर लेता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। ये अगर आप सिंथेटिक कपड़े पहन के या मैन मेड कपड़े पहन के जो हैं, ये जो सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं स्टूडेंट, अगर आप इन किचन में, लेबोरेटरी में, किसी फैक्ट्रीज़ वगैरह में अगर आप काम करते हैं जहाँ पर जैसे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, ऐसी जगहों में इनको पहन कर अगर आप काम करते हैं स्टूडेंट, इट इज़ वेरी डेंजरस। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है स्टूडेंट। और क्या होता है इससे, जो सिंथेटिक फाइबर होता है स्टूडेंट, ये जब भी इसको बर्न किया जाता है स्टूडेंट, इसको बर्न किया जाता है, ये मेल्ट हो जाता है।
बर्न किया जाता है तो ये बर्न होके इसकी ऐश नहीं बनती है, मेल्ट होकर के ये जल करके मेल्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, ये मेल्ट होकर के जो आपने जिसने इसको पहना हुआ है उसकी बॉडी के ऊपर स्टिक कर जाता है, और जिससे कि उसकी स्किन जो होती है पूरी तरह से जल जाती है। तो ये जो सिंथेटिक क्लॉथ है स्टूडेंट, ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। हालांकि तो जब भी हम इन चीज़ों से किचन में काम करें, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट है वहाँ पर काम करें, लेबोरेटरीज़ में काम करें, वहाँ पर हमें सिंथेटिक क्लॉथ्स या वी कैन से मैन मेड क्लॉथ, इन क्लॉथ्स को पहनने से बचना चाहिए। ये हमारे लिए और सबके सेफ होगा। अदरवाइज स्टूडेंट कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर वी ऑलरेडी डिस्कस, ओके। तो स्टूडेंट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, नाउ वी डिस्कस सम CCT बेस्ड क्वेश्चन। यू ऑल नो स्टूडेंट CCT, पीसा बेस्ड क्वेश्चन, ओके। पीसा बेस्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? इस चैप्टर जो हमने आपको ये अभी टॉपिक पढ़ाया है स्टूडेंट, इस टॉपिक में से पीसा बेस के कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या बनते हैं स्टूडेंट? जैसे हम आपको एक पैराग्राफ दे रहे हैं इसमें, तो आपको वो करना है। उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेम अ फाइबर विच इज़ completely फर्स्ट फाइबर विच इज़ completely आर्टिफिशियल इन नेचर, completely आर्टिफिशियल नेचर। अब देखिए हम बोल देते हैं रेयन, बट रेयन इज़ नॉट अ completely आर्टिफिशियल। मैंने आपको बताया था ना, the thing used for, the material used for making rayon is wood pulp, and wood pulp is a natural source. So rayon is not completely artificial fiber, okay। लेकिन दूसरे केस में स्टूडेंट अगर हम बात करें नाइलॉन की, नाइलॉन के केस में जो उसको मैन्युफैक्चर होने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए स्टूडेंट, वो सारी की सारी आर्टिफिशियल हैं। तो स्टूडेंट नाइलॉन इज अ फर्स्ट ह्यूमन मेड, और यू कैन से मैन मेड, आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर, ओके। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन CCT बेस हमने दिए हुए हैं स्टूडेंट आपको एज अ असाइनमेंट। यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स, ओके स्टूडेंट। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेरी सम कुछ रिगार्डिंग, यू कैन आस्क, ओके। थैंक यू स्टूडेंट।